Welcome SCPH to our presentation on chapter number 4 Space, Shapes and Pattern, and this is part 6 of our presentation. So children, in our previous presentation we learnt about cube, cuboid and sphere. So in this presentation we are going to learn about cone. इस presentation में हम cone के बारे में सीखेंगे. So let's start. Cone, C-O-N-E, cone. So let's see what this cone is telling about itself. चलो देखते हैं cone अपने बारे में क्या बोल रहा है. I am a cone, C-O-N-E, cone. मैं कौन हूँ. I have two faces. मेरे two faces होते हैं. I have one vertex. अब vertex किधर है? Okay, I'll show you. So the vertex is at the tip of the cone. And where is the tip of the cone? The tip of the cone is right over here. This. So this is the vertex. So I have one vertex. V-E-R-T-E-X, vertex. I have one side. मेरी एक side होती है. Okay? So what the cone is telling about itself? It's saying that it has two faces, one vertex and one side. Now let's move on. Match the following solid figures with the plane figures. तो आपको क्या करना है, आपको मैच करना है इन सॉलिड फिगर्स को इनके प्लेन फिगर्स के साथ. जैसे कि कौन हमें ट्रायंगल जैसा दिखता है, राइट. सो दिस इज़ अ सॉलिड फिगर एंड दीज आर द प्लेन फिगर्स. तो ट्रायंगल इस फिगर में किधर है? इट्स ओवर हियर. सो ट्रायंगल विथ कॉन वी आर गोइंग टू मैच इट. सो इट्स ओवर हियर. सिमिलरली क्यूब and the plane figure is over here, square. So we are going to match the cube with square. Similarly आप cuboid को अगर देखोगे तो उसका जो face है वो rectangle जैसा दिखता है. So rectangle is over here, so we are going to match it. Similarly sphere का face किसके जैसे दिखता है? Circle. So we are going to match sphere with circle. And here we go. So with this we have completed this activity. Now children, let us watch a video on the shapes to clear the concept of rolling and sliding. Rolling and sliding. In this module, you will explain when objects can roll and when they can slide and differentiate between rolling and sliding. What is this, Neil? It's a toy. My younger brother and I play with it. Do you want to play? Yes. Woohoo! We can slide from it. It's really cool. Yes, it's pretty cool. We can make the objects slide too. Really? Yes, see the box. It slides down from it. Let me try the suitcase. It also slides down. Do you know what will happen to the ball when we put it on the swing? Yes, it will slide down too. What did you see? Does the ball slide? The ball doesn't slide, but rolls down from the swing. It means that if I put an orange on the swing, it will roll down too. Yes, try it out as well. What is the difference between rolling and sliding? Why did the box and suitcase slide down, but the ball and orange rolled down? That's an interesting question. Rolling is when things turn over and over again, and sliding is when the things go down at once. Let's recap. You have seen Sophie and Neil tried to roll and slide down some objects from the swing. We learned that rolling is when the things turn over and over again, and sliding is
when the things go down at once. The ball and orange turned over and over again while going down, but the suitcase and the box went down at once without turning over. So children, I hope that you have understood the meaning of rolling and sliding. तो आपको rolling और sliding का मतलब अब आ गया होगा. Now, let's see what does stacking mean. S-T-A-C-K-I-N-G, stacking. Over here, can you see this picture? आप इस picture को देख सकते हो. Here, there are sugar cubes, 5 sugar cubes. ठीक है, हमने हर एक शुगर क्यूब को एक के ऊपर एक रखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैकिंग करना बोलते हैं. जब हम किसी चीज़ को एक के ऊपर एक रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टैकिंग. ऐसे हम कॉइन्स के साथ भी करते हैं, राइट? नाउ ROLLING, रोलिंग. ठीक है, व्हेन थिंग्स मूव ओवर एंड ओवर अगेन. ठीक है, स्लाइडिंग, SLIDING, स्लाइडिंग. जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही बार में नीचे आ जाता है, दैट इज़ स्लाइडिंग. And stacking. Now, can you see over here in this picture? This is a cube, right? So let's see cube क्या करता है? Slide करता है, roll करता है, या फिर stack कर सकते हैं हम cube को. Let's see. So I can slide. The cube is saying that I can slide. मैं slide कर सकता हूँ. मतलब it can move down at once. एक ही बार में नीचे आ सकता है. If we are taking a swing. Now I can also be stacked. क्यूब इज सेइंग कि मैं स्टैक, आप हमें स्टैक भी कर सकते हो, एक के ऊपर एक रख सकते हो. लाइक ओवर हियर द शुगर क्यूब्स, दे आर क्यूब, राइट? क्यूब शेप के होते हैं, तो हम एक के ऊपर एक रख रहे हैं ना, सो दैट्स वाई दे कैन बी स्टैक्ड. सो द क्यूब इज सेइंग आई कैन ऑल्सो बी स्टैक्ड. ठीक है, आप मेरे को एक के ऊपर एक भी रख सकते हो और स्लाइड भी कर सकते हो. आई कैन स्लाइड, बट क्यूब कैन नॉट रोल. ठीक है, क्यूब रोल नहीं कर सकता है. सिमिलरली, this is a picture of a cylinder. So cylinder is talking about itself that I can roll. Cylinder roll कर सकता है. Okay, so it can move over and over again. I can slide. Cylinder slide भी कर सकता है. Okay, so it can move down at once. I can also be stacked. हम cylinder को stack भी कर सकते हैं, एक के ऊपर एक रख सकते हैं. Fine. Similarly, this is a figure of अ क्यूबॉइड. ये किसकी पिक्चर है? क्यूबॉइड की है. नाउ लेट्स सी कि क्यूबॉइड अपने बारे में क्या बता रहा है. आई कैन स्लाइड, मैं स्लाइड कर सकता हूँ. इसका मतलब है मैं एक ही बार में नीचे आ सकता हूँ. आई कैन ऑल्सो बी स्टैक्ड, मतलब हम इसे एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट द कोन इज टॉकिंग अबाउट इटसेल्फ. चलो देखते हैं कोन अपने बारे में क्या बता रहा है. सो द कोन इज सेइंग दैट आई कैन रोल एंड स्लाइड. मैं रोल भी कर सकता हूँ और स्लाइड भी कर सकता हूँ. नाउ The sphere is saying about itself that I can only roll. मैं सिर्फ रोल कर सकता हूँ. So children, I hope that you have understood कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट स्लाइड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं और स्टैक कर सकते हैं. Now, tabulate the following under the right columns. Dice, birthday cap, football, shoebox, globe, crayons, eraser, मैथ बुक, आइसक्रीम, कॉर्न. तो हमें क्या करना है? हमें 3 कॉलम्स दे रखे हैं, रोल, स्लाइड, स्टैक. मतलब जो ऑब्जेक्ट्स रोल कर सकते हैं हमें वो रोल्स के अंदर रखना है. स्लाइड्स के अंदर हमें उन ऑब्जेक्ट्स का नेम लिखना है जो स्लाइड कर सकते हैं. सिमिलरली स्टैक के अंदर हमें वो ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखना है जो स्टैक कर सकते हैं. ओके, तो हमें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं जैसे कि डाइस, बर्थडे कैप, फुटबॉल, शू बॉक्स, ग्लोब, क्रेयॉन, इरेजर, मैथ बुक, आइसक्रीम, कॉर्न. तो इन सबको हमें सही कॉलम में लिखना है. ओके, नोट, एन ऑब्जेक्ट कैन कम इन ऑल द 3 कॉलम्स ऑल्सो. तो इसका मतलब है कोई एक ऑब्जेक्ट अगर तीनों चीज़ों को ओबे कर रहा है, मतलब वो इसको हम रोल भी कर सकते हैं, स्लाइड भी कर सकते हैं और स्टैक भी कर सकते हैं, तो हम उस ऑब्जेक्ट को तीनों कॉलम में लिख सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. डाइस. डाइस कौन सी शेप का होता है? क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन और सिलेंडर. वेरी गुड. डाइस होता है क्यूब शेप का, राइट? तो क्यूब का प्रॉपर्टी क्या था कि वो स्लाइड कर सकता है एंड वो स्टैक भी हो सकता है. वी कैन, सो द क्यूब कैन स्लाइड एंड कैन बी स्टैक्ड. तो हम डाइस को कहाँ पे लिखेंगे? रोल के अंदर लिखेंगे? नहीं, बिकॉज
क्यूब कैन नॉट रोल, तो इसका मतलब डाइस भी रोल नहीं कर सकता. सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाइस ओवर हियर. स्लाइड कर सकता है क्या डाइस? येस. सो वी आर गोइंग टू राइट डाइस ओवर हियर. DICE डाइस. सिमिलरली स्टैक, हम डाइस को स्टैक कर सकते हैं? येस वी कैन. तो हम डाइस यहाँ पे लिखेंगे DICE डाइस. सो नाउ वी आर गोइंग टू कट इट बिकॉज वी हैव डन द डाइस. नाउ बर्थडे कैप. बर्थडे कैप कौन सी शेप की होती है? क्यूब शेप की होती है. क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन और सिलेंडर. वेरी गुड. बर्थडे कैप होती है कोन शेप की, राइट? तो लेट्स सी व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कोन. कोन की प्रॉपर्टी है कि वो रोल भी कर सकता है और स्लाइड भी कर सकता है, राइट? व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कोन? दैट इट कैन रोल एंड इट कैन स्लाइड. तो बर्थडे कैप हम रोल के अंदर लिखेंगे? येस. वाई? बिकॉज इट्स अ कोन. शेप तो उसकी कौन जैसी है. सो बर्थडे कैप कैन रोल. तो ओवर हियर वी कैन राइट बर्थडे कैप BIRTHDAY बर्थडे कैप CAP कैप. नाउ कैन अ बर्थडे कैप स्लाइड? बर्थडे कैप स्लाइड कर सकती है? येस. सो वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर बर्थडे कैप BIRTHDAY बर्थडे कैप. नाउ कैन अ बर्थडे कैप स्लाइड कैन बी स्टैक्ड? नहीं, हम बर्थडे कैप को एक के ऊपर एक नहीं रख सकते हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट बर्थडे कैप अंडर स्टैक. ठीक है. नाउ फुटबॉल. फुटबॉल इज ऑफ द शेप ऑफ अ स्फीयर. ठीक है. फुटबॉल की शेप कैसी होती है? स्फीयर की जैसी होती है, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्फीयर. सो वी कैन रोल अ स्फीयर, राइट? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्फीयर? दैट इट कैन बी रोल्ड. तो जो फुटबॉल है हम उसे भी रोल कर सकते हैं. सो इट इज़ गोइंग टू कम अंडर रोल. फुटबॉल FOOTBALL football. So we have done dice, birthday cap, football. Now shoebox. Shoebox is of cube shape or cuboid, sphere, cone or cylinder. कौन सी शेप का होता है shoebox? Very good. It's of the shape of a cuboid. So let's see what is the property of a cuboid. It can slide. It can be stacked. ठीक है. हम क्यूबॉइड को स्लाइड भी करवा सकते हैं और स्टैक भी कर सकते हैं. सो हमें शू बॉक्स रोल के अंदर लिखना है? नहीं, क्योंकि क्यूबॉइड रोल नहीं कर सकता. सो इट मीन्स शू बॉक्स कैन ऑल्सो नॉट रोल. स्लाइड के अंदर लिखेंगे शू बॉक्स? येस, वी आर गोइंग टू राइट शू बॉक्स अंडर स्लाइड. वाई? क्योंकि वो क्यूबॉइड होता है एंड क्यूबॉइड कैन स्लाइड. सो शू बॉक्स SHOE शू BOX box. The shoe box SHOE shoe BOX box. Shoe box. Now can a shoe box be stacked? Yes, we can stack the shoe box. हम shoe box को एक के ऊपर एक रख सकते हैं. क्यों? Because shoe box की shape कौन सी होती है? Cuboid. And cuboid can be stacked. So we are going to write shoe box under stack. SHOE shoe BOX box. Shoe box. Now globe. Globe कौन सी shape का होता है? It is of a sphere shape, right? So what is the property of a sphere? That we can roll a sphere, right? So globe हम किसके अंदर लिखेंगे? रोल के अंदर लिखेंगे. GLOBE globe. ग्लोब को हम रोल कर सकते हैं. नाउ आर वी गोइंग टू राइट ग्लोब ऑन द स्लाइड? हम क्या ग्लोब स्लाइड के अंडर लिखेंगे? नो, वी विल नॉट राइट इट बिकॉज स्फीयर स्लाइड नहीं कर सकते और स्टैक भी नहीं कर सकते हैं. तो ग्लोब को भी हम स्लाइड नहीं कर सकते और ना स्टैक कर सकते हैं. नाउ क्रेयॉन्स. सो क्रेयॉन्स की शेप कौन सी होती है? इट्स ऑफ अ सिलेंडर शेप, राइट? नाउ क्रेयॉन is of a cylinder shape और सिलेंडर की क्या प्रॉपर्टी होती है? We can roll a cylinder. Cylinder can slide and it can be stacked. ठीक है. तो मतलब जो crayon है हम उसे रोल भी कर सकते हैं. So we are going to write crayon over here. CRAYON crayon.
हम क्रेयॉन को स्लाइड भी कर सकते हैं, सो वी आर गोइंग टू राइट क्रेयॉन ओवर हियर, CRAYON क्रेयॉन. हम क्रेयॉन को स्टैक भी कर सकते हैं, एक के ऊपर एक रख सकते हैं. वाई? बिकॉज इट्स अ सिलेंडर. तो हम यहाँ पे भी क्रेयॉन लिखेंगे, CRAYON क्रेयॉन. नाउ इरेजर. इरेजर कौन सी शेप का होता है? क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन और अ सिलेंडर. वेरी गुड. इरेजर की शेप होती है क्यूबॉइड. सो लेट्स सी द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्यूबॉइड. इट कैन बी स्लाइड, इट कैन स्लाइड एंड इट कैन बी स्टैक्ड. तो हम क्यूबॉइड को स्लाइड भी कर सकते हैं और उसको स्टैक भी कर सकते हैं, राइट? तो हम इरेजर को भी स्लाइड कर सकते हैं और स्टैक कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू राइट इरेजर अंडर स्लाइड, ERASER इरेजर, एंड वी आर गोइंग टू राइट इरेजर अंडर स्टैक, ERASER इरेजर. नाउ मैथ बुक. मैथ बुक कौन सी शेप की होती है? क्यूब, क्यूबॉइड और कोन, सिलेंडर, स्फीयर. वेरी गुड. मैथ बुक होती है क्यूबॉइड शेप की, राइट? सो क्यूबॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है? वी कैन स्लाइड एंड स्टैक इट, राइट? सो द मैथ बुक इज गोइंग टू कम अंडर स्लाइड एंड स्टैक. तो MATH मैथ बुक, BOOK बुक. सिमिलरली इधर हम लिखेंगे मैथ बुक बिकॉज इट कैन बी स्टैक्ड, MATH मैथ बुक, BOOK बुक. नाउ आइसक्रीम कॉर्न. आइसक्रीम कॉर्न कौन सी शेप का होता है? वेरी गुड. इट्स ऑफ अ शेप ऑफ अ कोन. कोन की क्या प्रॉपर्टी होती है? इट कैन रोल एंड इट कैन स्लाइड. तो हम आइसक्रीम कोन किसके अंडर लिखेंगे? रोल, स्लाइड और स्टैक. वेरी गुड. वी आर गोइंग टू राइट आइसक्रीम कोन अंडर रोल एंड स्लाइड. सो लेट्स राइट इट. आइसक्रीम कॉर्न. तो ICE आइस क्रीम, CREAM आइसक्रीम cone. Similarly on the slide we are going to write ice cream cone, ice cream, CREAM cream, cone, CONE cone. Now with this we have completed this question. Now let's read the new topic, that's pattern, PATTERNS, patterns. ठीक है. रिपीटिंग अ पैटर्न्स क्या होता है? रिपीटिंग अ सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर्म्स अ पैटर्न. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी सीरीज़ में रिपीट करेंगे तो उसे हम पैटर्न कहते हैं. पैटर्न कैन बी फाउंड एवरीवेयर. हम पैटर्न को हर जगह देख सकते हैं, मिल सकता है हमें पैटर्न हर जगह, एवरीवेयर, इन नेचर, इन क्लॉथ्स, इन नंबर्स, इन शेप्स एंड सो ऑन. नाउ टेक द ऑप्शन विच विल कंप्लीट द गिवन पैटर्न. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस क्वेश्चन में 2 येलो कलर के फिगर्स हैं, देन इज द पर्पल कलर फिगर्स एंड देन अगेन देयर इज येलो कलर फिगर्स. तो आप देख सकते हो 2 येलो कलर के हैं, फिर 2 पर्पल कलर के हैं, देन 2 येलो कलर के हैं. तो ये एक पैटर्न बना, ठीक है. नाउ इन 2 येलो कलर के फिगर्स के बाद कौन सा फिगर आएगा, कौन से कलर का? इट विल कम पर्पल कलर का, राइट? तो 2 पर्पल कलर के होंगे. अब 2 पर्पल कलर के बाद कौन सा फिगर है? 2 येलो. तो यहाँ पे भी 2 येलो है, तो बी ऑप्शन होगा. सो वी आर गोइंग टू टेक ऑन बी ऑप्शन. नाउ हियर इन दिस पैटर्न, इन दिस फिगर यू कैन सी ये ऑरेंज कलर का है, देन इज ऑलिव ग्रीन कलर का ये, फिर अगेन द डार्कर शेड ऑफ द ग्रीन, ठीक है. ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो सेम ये वाला कलर यहाँ पे है, देन उसके बाद ये वाला कलर आ रहा है एंड दिस कलर इज़ कमिंग आफ्टर दैट. तो ऐसा ही पैटर्न किस ऑप्शन में दिख रहा है? इट्स इन दिस ऑप्शन, राइट? इन दिस ऑप्शन यू कैन सी कि ये वाला कलर है, उसके बाद ये वाला कलर है एंड देन देयर इज़ अनदर कलर ऑफ द ग्रीन, राइट? सो दिस इज़ ऑल्सो कंप्लीटिंग द पैटर्न. नाउ कलर द पिक्चर्स टू कंप्लीट द पैटर्न. हमें पिक्चर्स को कलर करना है इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पहला पिक्चर कौन से कलर का है? ब्लू, देन रेड, ब्लू रेड, ब्लू रेड, ब्लू रेड, ब्लू रेड. देन इधर कौन सा कलर होगा? ब्लू. देन दिस इज गोइंग टू बी रेड, देन अगेन ब्लू, देन अगेन रेड. तो हमने ये पैटर्न कंप्लीट किया है. सिमिलरली ग्रीन है, देन 2 पिंक कलर के हैं, फिर ग्रीन है, देन 2 पिंक, ग्रीन, देन अगेन 2 पिंक विल बी देयर. इसमें तो सिर्फ एक है तो हम 2 करेंगे पिंक, देन एक ग्रीन आएगा, राइट? ग्रीन, देन 2 पिंक,
सो 2 पिंक. सो इसमें भी हमने ये पैटर्न कंप्लीट कर लिया है. सिमिलरली 2 पर्पल कलर के सॉक्स हैं, देन 2 येलो, देन अगेन 2 पर्पल, 2 येलो, देन उसके बाद क्या आएगा 2 पर्पल होगा. सो 2 पर्पल एंड देन 2 येलो होगा. तो इसमें तो सिर्फ एक है तो हम इसको एक येलो करेंगे. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पैटर्न ऑल्सो. नाउ लुक केयरफुली एंड कंप्लीट द लास्ट 2 पिक्चर्स. हमें इस पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और कंप्लीट करना है. आप देख सकते हो ये स्माइली, इसमें लाइक राउंड कलर का फेस है, राइट. माउथ कौन से इसमें शेप में है, राउंड है. सिमिलरली ये स्माइली फेस है, देन अगेन it's a round face, then it's smiling face, round face, smiling face, then again it will be round face. ठीक है, तो we are going to put a round face and then it's a smiling face, so like this. Now over here you can see a dice. इसमें एक डॉट है, फिर इसमें 2 है, फिर 3 डॉट, फिर अगेन 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट. तो यहाँ पे क्या होगा 1 डॉट होगा and then 2 डॉट. So children, with this we have completed this question. So in this presentation we learnt about cone patterns, right? So please revise about patterns and cone. So thank you.